Yeah, Nadeem, I'm here. Yeah. Okay. Thank you so much, Abhishek. Let's start. By the time students will also join, and I have already instructed to join the link as soon as possible so that we can start. Yeah, very good morning, one and all present here. This is Nadeem Rizvi, Assistant Professor from the Faculty of Social Work, Parul University. It is my pleasure to be a moderator for this webinar. I, Nadeem Rizvi, Assistant Professor from the Faculty of Social Work, Parul University. On behalf of Parul University, Dean Ma'am, Provost Sir, an entire family of our university would like to extend a very warm welcome to everyone, those who are a part of this webinar. I really appreciate you all taking time of your busy schedules to join this webinar on the subject waste management enthusiasm, and then we have changed the topic. Now it is responsible use of how we can use these plastic bags and how we can recycle these things. So Abhishek Pawar is going to talk about the title and webinar topic and all those things. And thank you once again. Now I would request Assistant Professor Shruti Bhosle to introduce our guest. Over to you, Shruti. Thank you so much, Nadeem sir, for these energetic words. And I'm sure that all our students are really excited to dive deeper and further. So without any further delay, I would like to introduce you to our expert, Mr. Abhishek Pawar, who has been actively involved in various waste management processes, focusing on capacity building, strengthening of systems, and has been working with various stakeholders to address on-ground challenges related to waste management. And sir has completed his BSc in Geography from Maharaja Sayajirao University of Baroda and MSc Environmental Science from Terry University, Delhi. And he has been working on plastic waste management projects of many international organizations like UN Environment, Foundation of Environmental Education, and Center for Environment Education, and there are so many. So he has been an excellent student, and what he wanted, he has already achieved, I guess. And he has deep understanding of waste management market and is inclined towards becoming an entrepreneur in the future. So now I would request Mr. Abhishek sir to take over this session and enlighten us with his rich experience. So over to you, sir. Yeah. Thank you, Shruti ma'am. Thank you so much for your kind words. That was that was a really nice introduction, and thank you, Nadeem, also. So yeah, Nadeem and I go way back during our bachelor days. We were friends during our college days, and yeah. So I have. I'll just share my screen, and we'll just start the session. Yeah, I hope you're all able to see my screen. Yeah. Yes. Yes, Abhishek, Perfect. it is visible. Okay. So basically, before we begin this session, I'm sure a lot of students over here must have heard a lot about plastic waste management since the, since Swachh Bharat Abhiyan started back in 2014, and there were a lot of initiatives taken by the government, and also the world as we see is changing now, and there are a lot of environmental challenges which are which are coming out due to plastic waste. So today's session would be more of, I mean, you would have already learned a lot of things about segregate your waste. Then plastic is bad for the nature. Plastic is bad for the environment. Plastic enters the oceans. It kills the wildlife. So these are all the things that a lot of people already know. We will be talking about them, but the major thing that the perspective that I want to give to the students today, it would be a little different. I would be talking more about my experience in this field, and what we have encountered, and what this field is encountering. What are the challenges that we are encountering in terms of solving this problem. So we will be talking about that. And let me just begin with my introduction. Although ma'am has given my introduction to all of you, I'll just give you a little brief about myself on what I've done. So I started working in this field since in 2016.
and I started working on the operational efficiency in waste management in a company called as Waste Ventures, where we worked on how to improve the collection system, how to integrate technology, the hard technology as well as the soft technology, and improve the whole collection process, wherein there is more collection and efficient collection. So that was when I started working in this field, and after that, I learned that there's a lot of gaps in between the awareness levels of different stakeholders. Like when you see waste management as a subject or as a field or an ecosystem, there are a lot of stakeholders in this field, and and one of the major part when we talk about waste management is that there is a lack of awareness that we see. So I started working in Center for Environment Education, where we started working on building capacity of different stakeholders. After that, I wanted to venture out into the business part of it, because that's when I got to know that this is also a very deep rooted ecosystem in our Indian economy. So that's when I ventured out into the business part of it. So that's when I started kind of looking into the post consumer plastic waste, what happens to all that waste, how is it channelized, to whom it is channelized, and what are the stakeholders earning money through it. So that was when I ventured out into the business part, and after that I got to know that there's a lot of technology scope which can be there's a lot of scope where technology can be integrated. So I'm currently working in an organization which digitizes the whole process of waste management, where the stakeholders can interact with each other. So so as to bring them on one platform, and it creates a whole holistic ecosystem. So that's what I have been working on lately in the current times, and we are scaling that solutions to pan India level with the different types of companies, with the municipal corporations. We are scaling that technology throughout the country. That's what we're doing. So let me just begin. Before I go on and jump to the waste management part, we have to understand where the problem begins. We have to see that what is the origin of this issue. So just to put that into the right context, we have a $2.7 trillion economy, which is the sixth largest in the world. And we know that the Indian economy is growing day by day. We are getting new types of technologies, we are getting new types of jobs, the job market is changing, and so is the economy. And if you look at it, in 1920 the FDI was around 75 billion or 74.4 billion US dollars, which was one of the biggest investment that we received in the last 4 or 5 years. And when we talk about the sectors, we have the top 5 sectors here: the agriculture, IT, automobile, FMCG, chemicals and petrochemicals. And the FMCG sector, for those of you, some of the students might not be knowing what FMCG is. FMCG is what we call it as fast moving consumer goods. So to just to make it more easy, आप लोग बिग बाजार में या डीमार्ट में कभी भी घुसते हो, the things that you see over there, everything is FMCG. It's called as fast moving consumer goods. आप टूथपेस्ट खरीदते हो, it comes under FMCG. You buy shampoo, it comes under FMCG. You buy biscuits, it's all FMCG. So ये सारी चीजें जो है वो FMCG में आती है. And why FMCG is important? Because हमारा जितना भी waste है, जो consumer waste निकलता है, the waste that we generate from our households, 80% of it is from FMCG. जितना भी प्लास्टिक वेस्ट I'm talking about, I'm not talking about the other waste, but जो प्लास्टिक वेस्ट निकलता है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो FMCG के होते हैं. उसका पैकेजिंग होता है, जो हमारा मेजर वेस्ट जो घर में से निकलता है. नाउ if I put that thing into a larger perspective, जो हमारी प्लास्टिक की इंडस्ट्री है, it comes under chemicals and petrochemicals, and it employs around 3 million people, which is a very huge number when it comes to employment. And when it comes to FMCG, it is the 4th largest sector in India with, it has a size of around 104 billion. So if you look at this whole sector, the FMCG sector, जिसके अंदर से majority of plastic waste मतलब plastic waste निकलता है, that sector itself is a very big sector with, the worth of $104 billion. तो उसके अंदर से हमारा 45% रूरल से आता है, 55% अर्बन से आता है, जितना भी रेवेन्यू है. सो इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक गेटिंग कंज्यूम्ड if the market size of an industry is $104 billion. तो
इसका आप सोचो कि कितना प्लास्टिक कंज्यूम होता होगा इसके पीछे. So moving on, with great economy come great challenges. Like it's the way I would like to put it. जैसे ही हमारे घर से कचरा निकलता है, right? When the waste is generated in households, हम every year India produces around 62.5 million metric tons of waste, and this is a figure by Central Pollution Control Board. Okay, and उसके अंदर से 9.2 million metric ton is plastic waste. Now imagine 62.5 आपका हमारा इंडिया का टोटल कचरा है, and this figure is of 2019. So the latest figure is not yet available, but this figure is of 2019. So 9.2 million metric tons of प्लास्टिक वेस्ट होता है उसके अंदर से 62.5 में से. तो ये दोनों चीजें हम दिस इज ऑल पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक, जो हम चीजें खरीदते हैं और जो चीजें हम यूज करके फेंक देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने बिस्किट खरीदा तो बिस्किट का पैकेट तो आप फेंक दोगे कचरे में. तो ये सारा जो प्लास्टिक है इट इज कॉल्ड एज पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक. तो ये जो सारा जितना भी कचरा निकलता है इट अमाउंट्स टू अराउंड 9.2 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एवरी ईयर. सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग. और उसके अंदर से अगर हम कैलकुलेट करें तो 25,000 मेट्रिक टन्स पर डे जनरेट होता है. इफ यू जस्ट ब्रेक इट डाउन टू अ डेली लेवल, तो 25,000 मेट्रिक टन्स हम डेली जनरेट करते हैं प्लास्टिक पूरे इंडिया में. ठीक है. सो दिस इज द अमाउंट. अब 25,000 को और 3 जीरो ऐड कर दो, उतना केजीज निकलेगा. वो इतना प्लास्टिक हम डेली जनरेट करते हैं इंडिया में. उसके बाद चैलेंज यहाँ पे शुरू होता है. उस 25,000 में से 15,000 प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट होता है, 10,000 कलेक्ट ही नहीं होता. अब ये सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है. हम लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक का प्रॉब्लम है, प्लास्टिक का प्रॉब्लम है. तो असली चैलेंज कहाँ है? द चैलेंज इज दिस. देख, 25,000 मेट्रिक टन डेली अगर हो रहा है जनरेट, उसके अंदर से सिर्फ 15,000 कलेक्ट हो रहा है, 10,000 कलेक्ट ही नहीं हो रहा है. तो आपको जब भी आप बाहर जाते हो आपको दिखता है कि ये प्लास्टिक का कचरा पड़ा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, इतना सारा इतना गंदा होके रखा है, इतने सारा प्लास्टिक कौन फेंकता है. सो ये वो वाला प्लास्टिक जनरली रहता है जो कलेक्ट ही नहीं होता, एंड दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. और वो प्लास्टिक का होता क्या है? वो प्लास्टिक जाता है डंप यार्ड में, वाटर बॉडीज में, ओशंस में, एंड देन इट हार्म्स द होल इकोसिस्टम. सो ये हमारा सबसे मेजर चैलेंज है कि हमारा प्लास्टिक का जो इकोसिस्टम है वो बहुत हिला हुआ है हमारे कंट्री में. एंड दैट इज व्हाट ऑल द स्टेक होल्डर्स आर ट्राइंग टू सॉल्व, कि प्लास्टिक का प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करें. तो इसके मतलब इतने सारे चैलेंजेस हम लोग अभी आगे भी देखेंगे कि क्यों ये इतना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है. तो ये आप चीजें याद रखना कि जब भी आप कुछ देखो फ्यूचर में कि प्लास्टिक पड़ा हुआ है, ये है, वो है, तो आप सोचो कि उसके पीछे देयर आर सर्टेन चैलेंजेस कि वो क्यों नहीं हो रहा है. सो लेट्स लुक एट इट. नाउ ये जब कचरा कलेक्ट नहीं होता है तो वो कहाँ जाके रुकता है? नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ लद्दाख. ओके, तो ये पहाड़ों में भी है, ये समुद्र के आसपास भी है, ये पेरी अर्बन एरियाज या रूरल एरियाज में भी प्लास्टिक अभी बहुत मिलने लगा है. ठीक है. So the plastic which is not collected, it just lies down, it travels anywhere. It travels literally anywhere in the anywhere on land, anywhere on water. ये कहीं पे भी travel करता है प्लास्टिक. So it's not so. और ये देखो, ये अर्बन एरिया है, एक रूरल एरिया है, एक समुंदर, एक पहाड़ है. तो आप सोचो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां प्लास्टिक नहीं पहुंचता. एंड टू बी ऑनेस्ट, वी आर द रीजंस, ह्यूमंस आर द रीजंस कि हमने प्लास्टिक को इतना ज्यादा अब्यूज किया है, उसके यूज को, कि we have taken it everywhere where it shouldn't reach. It should not reach the oceans. It should not, spoil the beautiful landscape of Ladakh. It should not be there. It should not be in an urban area. It should not be in a rural area. ये कहीं पे भी open में नहीं होना चाहिए. It should be processed. It should be recycled. लेकिन हमारी जो आदतें हैं और दूसरे भी काफी सारे challenges हैं, उसकी वजह से ये प्लास्टिक का क्या है कि it reaches the places where it shouldn't reach. So that's what we will be looking at. कि अभी मैं आपको कुछ लोगों को मैं सवाल पूछूंगा कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट क्यों करती है. व्हाई डू यू थिंक दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट? कि ये ये प्लास्टिक इधर पड़ा हुआ है, पहाड़ों में चला जाता है, ये प्लास्टिक समुंदर में चला जाता है, वाटर बॉडीज, रिवर्स में चला जाता है. तो ये प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट करता है? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है, इररिस्पॉन्सिबल ब्रांड्स है,
जो भी आप ब्रांड्स हम देखते हैं, तो एटलीस्ट मुझे 3 आंसर कोई स्टूडेंट्स है जो अपने आप को अनम्यूट करके मुझे कोई इसमें से ऑप्शन बता सकता है कि ये इन तीनों में से क्या आपको लगता है कि व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम. If anyone wants to try, please go ahead and unmute. Yeah. Anyone would like to attempt? At least I need at least 1 or 2 answers. You can attempt. यहाँ पे कोई सही गलत नहीं है. Please unmute yourself and please attempt this. At least one. Shraddha, Pooja, Rajesh, what do you think? इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता What है could be कि the option? रिस्पॉन्सिबल है? The lack of policy implementation. Okay. Anyone else? Irresponsible brands. Okay. Can you like जिसने भी lack of policy implementation बोला, कोई एक थोड़ा सा मुझे elaborate करके आप बता सकते हो कि like क्या लगता है आपको, like why do you think it's there? मैं policy implementation नहीं पूछ रहा, आपको क्यों लगता है कि ये lack of policy implementation है? Like sir, there are many people who are not aware if there is a policy. Like if अगर आपने यहाँ पे कचरा प्लास्टिक फेंका, then you have to pay like something, कोई दंड भरना पड़ेगा. You have to pay money. Then थोड़ा बहुत तो like people will not throw garbage like throw plastic. Okay, जो litter नहीं करेंगे. Got it. Yeah, exactly. कचरा फेंकेंगे. Okay. जो irresponsible brands जिसने भी बोला था, if you just give some explanation. So basically अगर कोई मतलब जो कंपनीज है वो अगर मतलब प्लास्टिक में प्रोडक्ट्स इन्वेंट करती है या उसके रैपर्स बनाती है, देन वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एनवायरनमेंट को इस तरीके से हार्म ना करे, क्योंकि उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं तरीके से लोग मतलब वो कचरा फेंकेंगे ही कहीं ना कहीं पे. Got it. हाँ. So that's a very very good answer that I have heard in such a long time. कि brands को पता है फिर भी brands को change नहीं करते. That's what I think you're trying to say. So yeah, I mean lack of infrastructure. So I'll just take you through it's not just 3 challenges. Real problem on ground जो है वो काफी बड़ा है if you look at it. एक हमारा चैलेंज है कि कलेक्शन एफिशिएंसी ही कम है हमारी कंट्री में. इफ यू लुक एट द कलेक्शन एफिशिएंसी, कचरा कलेक्ट ही नहीं होता. ठीक है. सो इफ आई एम स्टेइंग इन अ हाउस, तो हम जैसे हमारे घर पे सर्विसेज अच्छी हैं, सो हो रहा है. एंड टियर 1 सिटीज में कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छी होती है, जैसे कि आप अहमदाबाद देख लोगे, मुंबई देख लोगे, दिल्ली देख लोगे. इन सब सिटीज में कलेक्शन एफिशिएंसी फिर भी अच्छी होती है. लेकिन आप छोटे सिटीज में जैसे ही जाओगे, नॉट बड़ौदा बट बड़ौदा से भी छोटे टाउन्स में, छोटी सिटीज में जाओगे, तो वहां पे कलेक्शन होता ही नहीं है कचरे का. ये एक चैलेंज है कि अब कलेक्ट होगा ही नहीं तो लोग क्या करेंगे, लोग फेंक देंगे ना उसको रास्ते पे. सो ये वहां से प्रॉब्लम एक शुरू होती है कि कलेक्शन एफिशिएंसी लो है. दूसरा ये है लैक ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, हम लोग सेग्रीगेट नहीं करते कचरे को. दिस इज अ फैक्ट दैट एवरीवन ऑफ अस हैज टू एक्सेप्ट कि हमारे घर पे सेग्रीगेशन प्रैक्टिस नहीं होता. अगर होता भी है तो देयर आर लॉट ऑफ अदर चैलेंजेस आल्सो. लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि यार हम तो अलग करते हैं पर वो जो गाड़ी आती है वो मिक्स कर देती है. so this is not a real reason, because it should not, whatever that that vehicle or the guy in the vehicle does shouldn't bother your your practice. You should be segregating. सो लैक ऑफ सेग्रीगेशन है, लोग मोटिवेटेड नहीं होते सेग्रीगेट करने के लिए, या फिर लोगों में अवेयरनेस भी नहीं होता बहुत सारे लोगों में. सो दैट्स कंप्लीटली वन ऑफ द मेजर रीजंस. दूसरा ये है डिस्कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स है इस सिस्टम के अंदर. नाउ इफ आई गिव यू एन एग्जांपल कि जब भी आप कोई सुपर मार्केट में घुसते हो, एक डीमार्ट में आप घुस गए हो, चलो
तो डीमार्ट में अगर आपको टूथपेस्ट लेते हो या शैम्पू लेते हो, तो वो शैम्पू का पूरा जो जर्नी होता है कि वो डीमार्ट तक पहुंचा है, तो वो ये होता है कि एक एक स्टेक होल्डर कनेक्टेड होता है कि भाई डीमार्ट वाला जो है, द स्टोर इज कनेक्टेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर इज कनेक्टेड टू someone in the factory, then the factory is connected to someone who provides raw material. तो ये सारे स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं. बट इफ यू लुक एट द प्लास्टिक वेस्ट का जो इकोसिस्टम है हमारा, जो बाद में जो वेस्ट निकलता है, तो उसके अंदर स्टेक होल्डर्स कनेक्टेड ही नहीं होते. अब रैक पिकर होता है जो कचरा उठाता है, या फिर ये जो रास्ते पे आप देखते हो प्लास्टिक की बॉटल्स उठा के लेके जाते हैं, प्लास्टिक उठा के लेके जाते हैं, ये लोग होते हैं. तो इनका कोई कनेक्शन नहीं होता, ये आज किसी को देंगे कल किसी और को देंगे, एंड दे डोंट रियली हैव एन आइडेंटिटी. सो ये, और दूसरे उसके बाद भी ऐसे ही होता है कि किसी और को अगर वो देंगे, तो स्क्रैप डीलर्स जो है, अब बथेरे स्क्रैप डीलर्स है पूरे इंडिया में, बहुत सारे हैं. मतलब इवन इफ यू टेक अ सिटी लाइक बड़ौदा, तो उसमें बहुत सारे हैं. सो they do have a fixed chain, but there's a lot of disconnect between the stakeholders when it comes to the plastic waste management. दूसरा एक है कि इनफॉर्मल इकोसिस्टम. इनफॉर्मल इकोसिस्टम, लाइक आई टोल्ड, कि हमारा ये जो ये रैक पिकर वाला सिस्टम है, जो कबाड़ी वाला सिस्टम है, दे आर ऑल वेरी इनफॉर्मल. उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होता उनका, ठीक है. तो आइडेंटिटी ना होने की वजह से वो डेटाबेस में है ही नहीं कि they are working for the industry, but the industry doesn't know they are working for them. Right, like अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो वो इंडस्ट्री को पता होगा कि आप उनके लिए काम कर रहे हो. बट वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर ये इनफॉर्मल लोग काम करते हैं, उनका कोई हिसाब ही नहीं है. सो रैक पिकर होगा, वो कहीं पे भी जाके वेस्ट कलेक्ट करेगा, वो आज यहाँ से करेगा तो कल वहां से करेगा. सो देयर इज नो प्रॉपर like there is no proper system. तो उसके लिए इनफॉर्मल इकोसिस्टम की वजह से होता ये है कि बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट भी होते हैं, और जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आना चाहिए प्लास्टिक में से, वो निकल के नहीं आता कभी. सो ये एक हमारा इनफॉर्मल इकोसिस्टम का ड्रॉबैक है. फिर लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन लॉज, कि हमने इंडिया ने लॉज तो काफी सारे बना दिए हैं, लेकिन जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, जो PWM बोलते हैं उसको, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट लॉज, दे आर अ स्टेट सब्जेक्ट. मतलब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम एक गाइडलाइंस बनाएंगे, लेकिन जो लॉज रहेंगे, प्रॉपर लॉज, वो स्टेट के हाथ में, स्टेट को जैसे चाहिए वैसे कर सकता है. लेटेस्ट एग्जांपल दिखाऊं तो मैं आपको, तो एक वैक्सीन का एग्जांपल है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैक्सीन ले ली, पर उसको ये बोल दिया कि भाई वैक्सीन लेके हम स्टेट्स को दे देंगे, स्टेट्स को जैसे देनी हो वो स्टेट्स वैसे दे सकते हैं. तो PWM लॉज भी ऐसी है, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दे दी कि चलो ये करना है आपको, लेकिन उसको जो देने का काम है वो स्टेट करेगा. तो उसके ऊपर बहुत सारा क्लैरिटी की कमी है. सो आप गुजरात में जाओगे तो अलग लॉ होगा, महाराष्ट्र में जाओगे तो अलग लॉ होगा, राजस्थान में जाओगे तो अलग लॉ होगा. ऑल्दो पोल्यूशन सब जगह पे सेम है, सो द लॉ शुड ऑल्सो बी सेम एंड स्टैंडर्ड, लेकिन वो नहीं है. सो ये एक ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम है कि ये जो फेस करते हैं. और दूसरा ये कि लैक ऑफ रिसाइकलिंग कैपेसिटी. इवन दो हमारा सब कुछ अगर सही भी होता ना, तो हमारी जो इंडिया की रिसाइकलिंग की जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी काफी कम है, और उसके अंदर भी काफी सारे अनरजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं. मतलब जो जिनके पास प्रॉपर लाइसेंसेस नहीं है, वो भी रिसाइकल कर रहे हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लाइसेंसेस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ये चाहिए होता है, उसके लिए प्रॉपर मशीनरी चाहिए होती है, प्रॉपर विजिलेंस चाहिए होता है रिसाइकलिंग करने के लिए. रिसाइकलिंग इज नॉट समथिंग दैट एनीवन कैन डू. उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होता है अगर रिसाइकलिंग प्लांट आपको डालना है तो, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मशीनरी एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ परमिशंस फ्रॉम द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो रिसाइकल करते हैं लेकिन दिखाते नहीं है, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. और दूसरे ये भी है जो एक्चुअली में दे आर रजिस्टर्ड विद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, बट उनका कैपेसिटी जो है वो उनको कंट्रोल में रखना पड़ता है, बिकॉज दे कैन नॉट ओवरडू देयर कैपेसिटी. तो हमारा एक लैक ऑफ रिसाइकलिंग कैपेसिटी का एक चैलेंज है. तो बेसिकली देखो, द रीजन आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज आपने बहुत सारी चीजें जो है ना पहले ही आपने पढ़ी होगी, या फिर आपको अंदाजा होगा कि यार प्लास्टिक पता है क्या करता है. प्लास्टिक पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट, प्लास्टिक फिश के मुंह में चला जाता है, प्लास्टिक टर्टल खा लेता है. सी ये सारी चीजें, आई अग्री, these are not very good things, but the reason I'm trying to tell you all of this is because I want to give you a very different perspective of plastics, since I'm in the industry and I've seen the real challenges which are there.
सो ये पर्सपेक्टिव आई एम ट्राइंग टू गिव यू कि ये सारे challenges हम ऑन ग्राउंड फेस करते हैं ऑन अ डेली बेसिस. देन लेट्स मूव टू स्टेक होल्डर्स. नाउ रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि 9.2 मेट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हम एवरी ईयर हम निकालते हैं इंडिया में. ठीक है, ये नंबर है. अब उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास 5,000 रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स है. अब 5,000 रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स जो है दे आर ऑल लाइसेंस्ड रिसाइकलर्स. ये जो रजिस्टर्ड मैं बोल रहा हूँ जिसका मतलब है कि 5,000 के पास लाइसेंस है. लाइसेंस होने के बाद भी दे फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस फ्रॉम द मार्केट. उनका सप्लाई का इशू रहता है, ये सारे इश्यूज होते हैं. दैट ऑल्सो वील सी. 5,000 रिसाइकलर्स है, 310 रजिस्टर्ड ब्रांड्स है हमारे पास इंडिया में जो जिनको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. सो दीज आर द रजिस्टर्ड ब्रांड्स. नाउ ऑल्दो देयर आर अ लॉट ऑफ स्मॉलर ब्रांड्स जो प्लास्टिक पैकेजिंग यूज करते हैं, बट दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड फॉर PWM रूल्स. जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है वो उन पे नहीं बैठते फॉर सम रीजन, because their plastic usage is very very low compared to these 310 brands. या फिर बहुत सारे दूसरे रीजन है कि वो नहीं रजिस्टर करते. बट या जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के लिए रजिस्टर्ड ब्रांड्स है, लाइसेंसेस जिनके पास है, तो वो 310 ब्रांड्स है. I'll just try to give you an example. फ्यूचर में क्या हो जाएगा आपको मैं बताता हूँ. आपने कोई भी फूड प्रोडक्ट देखा होगा तो फूड प्रोडक्ट के पीछे चॉकलेट भी हो, च्युइंगम भी हो, कोई भी एडिबल प्रोडक्ट होगा तो एडिबल प्रोडक्ट के ऊपर एक चीज लिखी होगी FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन समथिंग. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द फुल एब्रिविएशन ऑफ इट, बट द FSSAI इज देयर इज अ लाइसेंस. Food safety. Yeah. Anyone wants to say anything, please? Food Safety Standard Authority of India, FSSAI. Yeah, Food Safety Standard, exactly. Food Safety Standard Authority of India. तो हर एक का एक FSSAI का लाइसेंस होता है, लाइसेंस नंबर होता है फूड प्रोडक्ट पे. तो अब फ्यूचर में ये हो जाएगा, नाउ नए रूल्स के हिसाब से देयर विल आल्सो बी अ PWM नंबर ऑन ईच प्लास्टिक पैकेजिंग. सो प्लास्टिक पैकेजिंग अगर कोई कंपनी यूज करती है और उन्होंने रजिस्टर करवाया है तो उसका भी लाइसेंस नंबर उसके ऊपर होगा टू ट्रैक ऑल ऑफ दैट वेस्ट. तो ये सारी चीजें होंगी. तो ये रोल ऑफ स्टेक होल्डर ये रहता है कि हर एक को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है इसके अंदर. अब हमारे इसके इंडिया के अंदर 15 मिलियन इनफॉर्मल वर्कर्स है. ये कबाड़ी वाले होते हैं, जो रैक पिकर्स होते हैं, फिर दूसरे एग्रीगेटर्स होते हैं जो स्टॉक करके रखते हैं पूरा का पूरा. तो वैसे 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स है सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में. मैं और किसी सेक्टर की बात भी नहीं कर रहा. 1.5 करोड़ सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर है. तो ये जो इफ यू डोंट नो, लेट मी जस्ट ऑल्सो इन्फॉर्म यू दैट अपना जो डंप यार्ड आपने देखा होगा कि कोई भी अगर अहमदाबाद से है या कोई और दूसरी सिटी से, तो आपको पता है कि अहमदाबाद में वो पिराना करके एक बहुत बड़ा वाला डंप यार्ड है. तो वो डंप यार्ड के अंदर देयर आर कम्युनिटीज विच स्टे इनसाइड दैट डंप यार्ड ऑल्सो. नाउ दैट इट हैज बीन handed over to some company and now they are cleaning it and making a plant over there. But डंप यार्ड के अंदर अभी भी पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज है जो डंप यार्ड में रहते हैं और उनका जो लाइवलीहुड है इट इज जस्ट प्लास्टिक वेस्ट. उसी से उनका जीवन चलता है. सो ये एक कम्युनिटी हो गई. दूसरी एक कम्युनिटी है कबाड़ी वालों की. नाउ कबाड़ी जो होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी वेरी हाई इन नंबर. तो आप लोकल शॉप में जाओगे किसी भी कि जो पेपर लेता है, प्लास्टिक लेता है, वो तेल के जो प्लास्टिक के डिब्बे लेता है. तो दे आर ऑल इनटू द इंडस्ट्री एंड दे आर ऑल वेरी इनफॉर्मल. दे आल्सो डील विद प्लास्टिक्स एंड दे आल्सो डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो हमारा ये जो इनफॉर्मल वर्कर्स का जो फोर्स है, ये जो वर्क फोर्स है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है हमारे इसका. बट वो उनका कोई दे डोंट हैव दैट पावर टू इन्फ्लुएंस. सो ये एक हमारा मेजर चैलेंज है. तो उनको एम्पावर करने के लिए भी बहुत सारा काम हो रहा है. और दूसरा है अर्बन लोकल बॉडीज. नाउ कचरा जो निकलता है वो करता कौन है कलेक्ट? एक अर्बन लोकल बॉडी विच इज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बोलते हैं. अर्बन लोकल बॉडी इज नथिंग बट अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो इंडिया में 3700 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है इफ यू जस्ट लुक एट इट. तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे ये स्टेक होल्डर्स है वेस्ट मैनेजमेंट के. और ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि रिसाइकलर्स हमारे पास बहुत ज्यादा है
लेकिन फिर भी सप्लाई चैलेंजेस फेस करते हैं, ठीक है। नाउ रिसाइकलिंग कैपेसिटी जो है वो यूज नहीं हो पाती, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो कैपेसिटी जो रह जाती है, तो ये सप्लाई जब नहीं मिल पाता तो वो जो रिसाइकलिंग कैपेसिटी है उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और ये एक पैराडॉक्स बन जाता है कि एक साइड से सप्लाई भी कम है और दूसरी साइड से कैपेसिटी भी कम है, तो ये वैक्यूम क्रिएट होता है रिसाइकलर्स और प्लास्टिक वेस्ट के सप्लाई में। बिकॉज देखो रिसाइकलर भी एक इंडस्ट्री चला रहा है, उसको भी रॉ मटेरियल चाहिए कुछ करने के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से रिसाइकलर का कैपेसिटी भी कम हो जाता है और जो सप्लाई है वो भी कम हो जाता है, तो ये एक चैलेंज है। ब्रांड्स जो होती है, ठीक है, ब्रांड्स स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू फ्यूल द रिसाइकलिंग सप्लाई चेन। अब ब्रांड्स क्या करती है, ब्रांड्स को एक लॉ है जो बाद में आएगा, मैं आपको बताऊंगा उस लॉ के बारे में, गवर्नमेंट ने जो बोला है करना है। तो ब्रांड्स जो है वो एक लॉ है ईपीआर करके, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो काफी सारा पैसा डालते हैं इस चीज को फ्यूल करने में। ये जो सप्लाई चेन है वो चलाने के लिए ब्रांड्स भी काफी सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जस्ट इन केस यू डोंट नो कि ब्रांड क्या कर रहे हैं, ब्रांड ये कर रहे हैं कि दे आर फ्यूलिंग द होल सप्लाई चेन एंड इट इज अ मैंडेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो ये सारी चीजें हैं। एंड देन इनफॉर्मल वर्कर्स कनेक्ट द कंज्यूमर्स एंड डब्ल्यूएमएस। WMA इज नथिंग बट अ वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी। जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं वो करते क्या है, उनका रोल ये है, इनफॉर्मल वर्कर्स का जो रोल है वो ये है कि जो कंज्यूमर्स होता है, कंज्यूमर्स को वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसीज या जो भी रिसाइकलर्स है उनको कनेक्ट करने वाला जो मेजर होता है वो इनफॉर्मल वर्कर होता है। आप कहीं पे भी बाहर जाओगे, मॉल में जाओगे, शॉप में जाओगे, तो आपने देखा होगा कि देयर इज सम, मॉल में तो नहीं बट या जो बाहर की रोड साइड शॉप्स होती है, रोड साइड फूड जॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे, ये जो फरसान की दुकान होती है, समोसे बेचने वाले होते हैं, ये सब जो होते हैं, तो उनके यहाँ पे आपने देखा होगा कि पानी की बोतल भी मिलती है। एंड देन there are sometimes a rack picker who puts his hand into the dustbin and takes out that plastic bottle and puts it into his bag। ये सारी चीजें आपने शायद देखे होंगे, आई एम श्योर किसी ने तो देखा ही होगा ये वाला। तो रैक पिकर्स घूमते रहते हैं, वो इनफॉर्मल होते हैं, दे डोंट वर्क फॉर एनीवन, दे जस्ट वर्क फॉर पीपल हु गिव देम बेटर रेट्स, दैट्स इट। तो वो करते क्या है, उनका रोल ये है कि आप कंज्यूमर हो और वो क्या करेगा कि वो जो बॉटल है प्लास्टिक का, वो किसी एग्रीगेटर को देगा या तो किसी कबाड़ी वाले को देगा। तो वो क्या करता है कि वो एक चेन का लिंक बन जाता है, वो कनेक्ट करता है, सो दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। और अर्बन लोकल बॉडीज का क्या रोल है कि आपके घर से जो कचरा उठता है, घर पे जो प्लास्टिक जनरेट होता है, उसको मैनेज करना, ये उनका रोल रहता है। सो ये सारी चीजें हैं, और उसके अंदर भी मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस गोइंग ऑन। तो फ्लो कैसे होता है ये वेस्ट मटेरियल, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको लगता होगा कि ये वेस्ट मटेरियल इतना कूड़ा पड़ा रहता है, क्या होता है उसके साथ, और क्या होता होगा वेस्ट के साथ, प्लास्टिक वेस्ट इतना क्यों हमको दिखता रहता है, इसका कोई कुछ करता क्यों नहीं है, रिसाइकल क्यों नहीं करते। तो मैं आपको बताता हूँ ये फ्लो कैसे होता है ये मटेरियल। ये आपका घर है, मान लो आपने घर से जो कचरा है वो निकाला है, ठीक है, वो कचरा जाएगा ट्रांसफर स्टेशन में। तो हाउस होल्ड से जब भी ये जो गाड़ी आती है आपके घर पे, या फिर आप अगर अपार्टमेंट में रहते होंगे तो आपके यहाँ पे कोई एक बंदा होगा जो पूरे अपार्टमेंट का कचरा कलेक्ट करके रखता होगा, एंड देन जो गाड़ी आती होगी उसके अंदर डालता होगा। या फिर किसी का अगर इंडिविजुअल हाउस होल्ड है तो हमारे यहाँ पे तो डायरेक्टली वो आता है और वी पुट इट इनटू दैट व्हीकल। तो वो व्हीकल उसको लेके जाता है ट्रांसफर स्टेशन में। तो ट्रांसफर स्टेशन में काम क्या होता है, ट्रांसफर स्टेशन में रिसाइक्लेबल्स जितने भी होते हैं, तो वो रिसाइक्लेबल्स वहां पे सॉर्ट आउट होते हैं, कि जितना भी रिसाइक्लेबल प्लास्टिक होता है वो सॉर्ट आउट होता है वहां पे, और बाकी का जितना भी है तो उससे उधर से वो सीधा रिसाइकलिंग में चला जाता है, और दूसरा जाता है वो लैंडफिल में। ठीक है, लैंडफिल में जाने का मतलब ये होता है कि जिस प्लास्टिक का या जिस कचरे का, मैं बोल रहा हूँ, नॉट जस्ट प्लास्टिक छोड़ दो, कोई भी ऐसा कचरा होता है जिसका कुछ हो नहीं सकता, जैसे कि फूड वेस्ट होता है, फूड वेस्ट का कंपोस्टिंग कोई करता नहीं है, बोलते हैं बट नो वन डज इट। सो फूड वेस्ट हो गया या फिर ऐसे कोई ऐसा वेस्ट हो गया जिसका कुछ नहीं हो सकता, वो जाता है सीधा लैंडफिल में। और जो रिकवर होता है उस ट्रांसफर स्टेशन में से, जैसे कि प्लास्टिक के बॉटल्स हो गए, शैम्पू बॉटल्स हो गए, ये सारा जाता है रिसाइकलिंग में। ठीक है, तो ये रहता है हाउस होल्ड का। नाउ आई टेल यू अबाउट कमर्शियल। नाउ कमर्शियल जो है, आप रोड साइड शॉप्स देख लो, कैफेज देख लो, मॉल्स देख लो, ये सारा होता है कमर्शियल। नाउ कमर्शियल इज ऑल्सो अ वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ पे कचरा जनरेट होता है. हाउस होल्ड में क्या होता है कि हाउस होल्ड में कचरा कम जनरेट होता है, बट कमर्शियल आर ऑल्सो कॉल्ड एज बल्क वेस्ट जनरेटर्स, कि उनके यहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा जनरेट होता है. एंड दे उनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है वेस्ट के मैटर में, जो जिनके यहाँ से कचरा आता है. कमर्शियल में क्या होता है, ट्रांसफर स्टेशन में जाता है या तो फिर रैक पिकर वहां से उठा के लेके जाता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ दैट एस्टेब्लिशमेंट. अगर बहुत बड़ा शॉप है, बहुत बड़ा शोरूम है, तो वो वहां से एक ऑफिशियल सर्विस होगी जो ट्रांसफर स्टेशन ले जाके रिसाइकलिंग में जाएगा और वापस से वहां पे जो नई प्रोसेस हो सकता है वो लैंडफिल में जाएगा. दो सेम प्रोसेस विच गोज ऑन विद द हाउस होल्ड. बट जो रैक पिकर के पास जाएगा, जो कचरा, रैक पिकर सब कचरा नहीं उठाएगा. रैक पिकर क्या करेगा, सिर्फ रिसाइकलेबल कचरा उठाएगा वहां से. तो कमर्शियल में से वो रिसाइकलेबल्स उठाएगा रैक पिकर, वो जाएगा स्क्रैप डीलर के पास, क्योंकि रैक पिकर के पास इतना पावर नहीं है कि वो कुछ कर पाए. तो रैक पिकर बहुत एक छोटी क्वांटिटी जमा करता है प्लास्टिक की, जैसे कि 15 केजीज 20 केजीज, वो जितना भी उठा सकता है वो उठाएगा, और उसको एट सम प्राइस द स्क्रैप ही विल सेल इट टू द स्क्रैप डीलर. स्क्रैप डीलर क्या करता है, उसके पास 6-7 रैक पिकर्स होते हैं कि वो जो आके उसको दे देते होंगे कचरा, वो स्क्रैप डीलर बन जाता है. फिर उसके पास 7-8 मतलब 6-7 रैक पिकर्स आएंगे और अपना अपना बेस्ट प्राइसेस पे उसको स्टॉक देके जाएंगे. और स्क्रैप डीलर क्या करेगा, स्क्रैप डीलर देगा एग्रीगेटर को. नाउ एग्रीगेटर इज लाइक सुपर स्टॉकिस्ट ऑफ दिस मटेरियल्स. और ये सारे के सारे इनफॉर्मल प्लेयर्स हैं, दे आर नॉट इवन इनटू द सिस्टम. लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये सब सिस्टम में है भी नहीं. तो ये जाएगा एग्रीगेटर के पास. नाउ एग्रीगेटर इज समवन हु स्टोर्स ऑल दैट मटेरियल एंड डज एंड सेल्स इट टू द रिसाइकलर. तो ये जाता तो है रिसाइकलिंग में, लेकिन एक पूरी चेन के थ्रू जाता है. सो अगेन इसके अंदर ये इतना कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है. इसके लिए आप जो प्लास्टिक का कचरा रास्ते पे पड़ा हुआ देखते हो, वो इसीलिए देखते हो क्योंकि ये उसके पीछे का जो इकोसिस्टम है वो इतना कॉम्प्लेक्स है. It is not very easy to collect the type of plastic and just send it for recycling. Whenever आपको अगर कोई बोलता है ना कि ये प्लास्टिक का क्या करते हैं, कोई रिसाइकल क्यों नहीं कर लेता इसको, इट्स नॉट सो इजी टू रिसाइकल. अगर होता तो कर लेते सबके सब, राइट. सो ये this is the complexity that goes behind the system, and this is something that I'm telling you because ये वाली जो चीजें है ना कि प्लास्टिक से क्या होता है, प्लास्टिक कितना हार्मफुल है, ये आपको कहीं पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. So this is not something that I would like to tell you. I would like to give you the complexities of the system कि अगर problem है तो problem solve क्यों नहीं हो रहा है. So this is the reason behind it कि ये इतना complex ecosystem है. Now coming to the consumer, अब ये बात हम पे आती है, हम लोग क्या challenges face करते हैं. As a consumer हमारे भी problems है. I am not saying that complexity सिर्फ system के अंदर है. We also as a consumer have our own challenges. तो हम लोग जब भी दुकान से या कहीं से भी कोई मटेरियल खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, तो हम लोग कभी डिस्पोजल के बारे में नहीं सोचते. वी ऑलवेज ओनली थिंक अबाउट द यूज ऑफ दैट मटेरियल दैट वी वांट टू हैव, यूज ऑफ व्हाटएवर प्रोडक्ट दैट वी वांट टू हैव, बट वी नेवर थिंक ऑफ हाउ आर वी गोइंग टू डिस्पोज द प्लास्टिक पैकेजिंग दैट इट कम्स इन. सो एक हमारा चैलेंज रहता है कि हमको अवेयरनेस ही नहीं है. दैट इज वन ऑफ द फैक्ट. आई मीन ये this is not something we can take it as a criticism. This is something that we can help improve our knowledge. Like हम लोग को improve करना चाहिए इसके ऊपर कि हम aware क्यों नहीं है. Why do we not think about it? तो हमको वो awareness नहीं है. एक हमारा challenge ये है. दूसरा ये है कि lack of disposal infrastructure. स्टार्टिंग में किसी ने बोला था कि कहीं पे डस्टबिन नहीं हो, मतलब कि लोग लिटर पे फाइन क्यों नहीं लगाते, कि गवर्नमेंट फाइन क्यों नहीं लगाता कि कोई लिटर करता है. तो आई वुड लाइक टू से कि आपने बहुत सारी जगह पे आपको कचरा फेंकना होगा, लेकिन आपको डस्टबिन ही नहीं मिलेगा फेंकने के लिए. तो डिस्पोजल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है कि आपको कचरा फेंकना है, यू वांट टू थ्रो इट इन अ डस्टबिन, बट यू आर नॉट फाइंडिंग अ डस्टबिन वेयर यू कैन थ्रो इट ऑफ. सो ये डिस्पोजल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा चैलेंज है. और डिस्पोजल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये भी आता है, जैसे कि मैंने बोला था कलेक्शन एफिशिएंसी, कि कचरा कलेक्ट ही नहीं होता, तो ये भी एक डिस्पोजल का इश्यू है. लिटरिंग
Hello, Abhishek. Hello, Abhishek. It's my humble request not to leave the webinar link. He is joining very shortly. Yes, sir, he's joining. Yeah. So sorry, I just lost my internet connection. I think all of us have been facing these challenges, especially during the lecture times. So yeah, just give me 1 minute. Just share my screen once again. No problem, Abhishek. You can take your time. Yeah, I think we were here, if I'm not wrong. Yes, right. Okay. Yeah. So I'll just continue. So I was talking about this NIMBY syndrome, lack of knowledge about plastics. Like I said, a lot of plastics which we think are recyclable are not really recyclable. So when we use the plastic, thinking that I will dispose it properly, it will get recycled. But no, a lot of plastics don't get recycled. In fact, only if I have to give you a number, पूरे वर्ल्ड में जितना भी प्लास्टिक प्रोड्यूस हुआ है आज तक, ठीक है, जितना भी प्लास्टिक प्रोड्यूस हुआ है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 9% ऑफ प्लास्टिक हैज बीन रिसाइकल्ड, ओनली 9%. उसमें से मोस्ट ऑफ इट, ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ इट जो है वो it lies somewhere in the oceans, it lies somewhere on
open dump yards, it lies somewhere. वो अभी भी है. Nothing has treated it, और उसका कुछ हुआ ही नहीं है. 70% ऑफ प्लास्टिक वैसा ही है अभी भी दुनिया में. तो हमारा जो लैक ऑफ नॉलेज है प्लास्टिक्स को लेके कंज्यूमर्स का, वो भी एक मेजर चैलेंज है, राइट. और उसके बाद आता है निम्बी सिंड्रोम, जो मैंने बोला था नॉट इन माय बैकयार्ड. तो नॉट इन माय बैकयार्ड सिंड्रोम ये होता है कि जहाँ पे मेजरली, जैसे मैंने बताया था कि इंडिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है मेजर जहाँ पे कलेक्शन रेगुलरली नहीं होता. मतलब वो कलेक्ट करने वाला इंसान या कलेक्ट करने वाला गाड़ी जो है वो आता ही नहीं है. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि जैसे अगर आपके घर पे भी 4 दिन तक गाड़ी नहीं आएगी तो आपको कहीं पे जाके उस कचरे को डालना पड़ेगा, राइट. विच इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये एक हमारा प्रॉब्लम है. तो निम्बी सिंड्रोम जो है, इट इज लाइक नॉट इन माय बैकयार्ड. मुझे नहीं चाहिए मेरे घर में कचरा, मैं कहीं पे जाके डाल के आऊंगी और मेरे घर के आसपास कोई कचरा नहीं डालेगा. इट विल बी समवेयर इन द ओपन स्पॉट, इट विल बी समवेयर. तो ये हमारा एज अ कंज्यूमर भी ये हमारा चैलेंज है. फिर उसके बाद अब हमको क्या करना है इसके अंदर. लाइक ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए, चैलेंजेस डिस्कस कर लिए, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें होंगी. बट एज अ कंज्यूमर हम लोग क्या कर सकते हैं. कोई इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हमको करना है, ठीक है. दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू एंश्योर कि हम ये 4-5 चीजें करें तो भी प्रॉब्लम बड़े हद तक सॉल्व हो सकती है. एज अ कंज्यूमर हम क्या कर सकते हैं. तो एक है, अगर आपको चेंज मेकर बनना है तो सबसे पहले आपका काम है इस प्लास्टिक सेग्रीगेशन. प्लास्टिक को आप जितना सेग्रीगेट करोगे बाकी सब चीजों से, आपके फूड वेस्ट से, आप जितना भी आपके घर पे कचरा निकलता है, प्लास्टिक को सिर्फ अलग कर दोगे ना तो भी बहुत सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा. बिकॉज जब आप प्लास्टिक अलग करते हो तो उसका रिसाइकलिंग में या तो को प्रोसेसिंग में, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि जो प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होता वो चला जाता है को प्रोसेसिंग में. जिसका मतलब है या तो वो सीमेंट प्लांट में एज अ फ्यूल यूज होगा, या तो इट विल गो टू अ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जहां से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स अब बहुत सारे आ रहे हैं इंडिया में. तो जो प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होता वो वहां पे जाएगा. बट उसके पीछे कंडीशन ये है कि प्लास्टिक गंदा नहीं होना चाहिए. हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि सेग्रीगेट नहीं करते, तो प्लास्टिक का जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाता है, गंदा हो जाता है. तो फिर उसको तुम उसमें भी यूज नहीं कर सकते. जो अपना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, सीमेंट प्लांट है, वहां पे भी वो गंदा प्लास्टिक यूज नहीं हो सकता. तो प्लास्टिक शुड बी क्लीन. सो बेस्ट थिंग इज टू सेग्रीगेट ऑल ऑफ दैट प्लास्टिक. एंड इसके पीछे थोड़ा सा एफर्ट अगर आप डालोगे कि वो जितना भी प्लास्टिक आपने सेग्रीगेट किया हुआ है उसको अगर आप क्लीन करोगे तो बहुत ही ज्यादा प्लास्टिक आप लैंडफिल में जाने से बचा सकते हो. ये चीज एक है कि ये सबसे पहला स्टेप है कि आप खुद प्रैक्टिस करना चालू करो. दूसरा स्टेप ये है, एजुकेट द सोसाइटी. मतलब बहुत सारे हमारे जो पेरेंट्स हैं, दे हैव नॉट सीन दिस थिंग, राइट. उन्होंने कभी देखा ही नहीं है कि भाई प्लास्टिक सेग्रीगेशन होता है या प्लास्टिक जैसा प्लास्टिक इतना पॉल्यूट करता है. लॉट ऑफ आवर पेरेंट्स डोंट इवन नो दिस कि प्लास्टिक कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है नेचर में जब घुस जाता है तब. तो हमारा ये भी काम रहता है कि वी हैव टू एजुकेट द सोसाइटी, जिसकी वजह से हम लोग ये कर पाए कि जो हमारे पहले का जनरेशन है और हमारे बाद का जनरेशन है, ऑब्वियसली हमारे बाद जो जनरेशन आएगा उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज उनके टाइम पे अवेयरनेस हमेशा ज्यादा ही रहेगा. बट हमारे पहले का जनरेशन है, उनको समझाना, उनको एजुकेट करना. एंड ऑल्सो द सेम एज ग्रुप दैट लाइक ऑल ऑफ यू बिलोंग टू, आपके अंदर भी जो पीयर ग्रुप्स है आपके, उनको भी एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट द सोसाइटी सो यू कैन बिकम अ चेंज मेकर देयर ऑल्सो. कि पहले आप खुद प्रैक्टिस करें, यू बीन थ्रू द चेंज, कि आपने अपना बिहेवियर कैसे चेंज किया. और दूसरा है कि उसके बाद आप सोसाइटी को भी एजुकेट करें. तो ये सारी चीजें रहती है. उसके बाद होता है एडवोकेट. एडवोकेट का मतलब ये रहता है जनरली कि आपने चलो खुद को चेंज कर लिया, आपने सोसाइटी को एजुकेट किया. बट एडवोकेसी का मतलब ये है कि ब्रिंगिंग द रियल चेंज. कि आपने कॉलेज में कोई इनिशिएटिव लिया मैनेजमेंट के साथ मिलके कि आप ये वाला सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक आप यूज नहीं करोगे, सो दैट द प्लास्टिक पोल्यूशन इज रिड्यूस्ड एटलीस्ट फ्रॉम योर एंड. तो ये अगर कोई इनिशिएटिव कोई लीडर लेना चाहता है, इफ एनीवन वांट्स टू टेक दैट लीडरशिप, यू कैन टेक एंड यू कैन एडवोकेट. बिकॉज एडवोकेसी से बहुत फर्क पड़ता है. And a lot of colleges on lot of institutes where there are students who have taken such initiatives where वो literally zero, मतलब प्लास्टिक का इतना कम यूज किया है उन्होंने पूरे कैंपस के अंदर. मतलब
कम किया है का मतलब है कि कम करवा दिया है स्टूडेंट्स ने मिलके कि ये प्लास्टिक प्रोडक्ट नहीं आएगा, वो प्लास्टिक प्रोडक्ट नहीं आएगा कॉलेज के अंदर, कैंटीन के अंदर। सो ये सारी चीजें एडवोकेसी के अंदर आती है जब स्टूडेंट्स मैनेजमेंट के साथ मिलकर डिसीजन लेते, दैट इज वेयर द रियल चेंज हैपेंस। तो ये चीज आप कर सकते हैं, दैट्स वेयर यू कैन आल्सो बिकम अ चेंज मेकर। ये आपका स्टेप 3 है। और दूसरा ये ओवरकम इट। तो जब भी आप ये सारी चीजें कर देंगे, यू आर ब्रिंगिंग अ चेंज, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट चेंज ऑल्सो। अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे, इट विल गो बैक टू नॉर्मल, एंड देन आपने जितनी भी मेहनत की है उस मेहनत को देयर विल बी नो देयर विल बी उसका कोई पॉइंट नहीं है। इफ यू वर्क दिस हार्ड एंड ब्रिंग अ चेंज एंड देन यू डोंट if you overcome it and then you don't really maintain it. So ये सारी चीजें जब आप ओवरकम करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन चीजों को मेंटेन करो जितना भी आपने चेंज लाया है। सो ये चीजें आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं कि जब भी आप सोचो कि ये अगर ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद कि इस प्रेजेंटेशन का पॉइंट क्या था, तो पॉइंट ये था कि हमारा अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कहीं पे भी कम नहीं होना चाहिए। वो कंट्रीब्यूशन आप रखो ही रखो। अब बाकी सब स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं वो आपके हाथ में नहीं है। मे बी यू कैन एक्सप्लोर दैट अपॉर्चुनिटीज टू, बट आपका जो डिस्पोजल सिस्टम है, आपका सेग्रीगेशन वाला जो प्रैक्टिस है, एज अ कंज्यूमर आप अपना रोल पूरा करना चाहिए। दैट इज व्हाट वन ऑफ द मेजर थिंग्स इन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इज। सो ये आप चेंज मेकर आप बन सकते हो। ये हो गया आपका रोल एज अ कंज्यूमर। आप कंज्यूमर हो, आपको आपके हाथ में बहुत सारी चीजें। मैं आपको एक और केस बताता हूँ, शायद आपने सुना भी होगा ये केस किसी से, या मे भी पढ़ा होगा कहीं पे सोशल मीडिया पे। सो देयर वाज दिस स्कूल इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु वाले स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि दे कलेक्टेड अ लॉट ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, दे कलेक्टेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लास्टिक, और वो उन्होंने ब्रांड वाइज उसको सेग्रीगेट कर दिया कि चलो ये ब्रांड का प्लास्टिक अलग कर दिया, वो ब्रांड का प्लास्टिक अलग कर दिया, और ये सारा प्लास्टिक एक और बड़े प्लास्टिक बैग में पैक करके वो प्लास्टिक उन ब्रांड्स को भेज दिया कि ये आपका जो प्लास्टिक है ये हमारी सिटी को एज इन हमारे गांव को पोल्यूट कर रहा है। दैट इज व्हाट दे डिड इन तमिलनाडु। दिस इज द लेवल ऑफ अवेयरनेस दैट द नेक्स्ट जनरेशन हैज, कितना एजुकेशन उनको मिल पा रहा है। बट हमारी जनरेशन कहीं पे बीच में अटक गई है, वेयर वी हैव टू एंश्योर कि हम अपना पार्ट भी प्ले करें। सो एज अ कंज्यूमर वी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिंक, एंड इफ वी पुट द प्रेशर ऑन ब्रांड्स दे विल डेफिनेटली चेंज। सो ये चीजें आप कर सकते हो। दूसरी बात ये होती है फिर ब्रांड खुद क्या कर रहा है। नाउ इट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन कि ब्रांड क्या कर रहा है इन सब के चक्कर में। तो बेसिकली ब्रांड के पास ऑलरेडी जितना भी कचरा निकलता है उनका, उसको चैनलाइज करना पड़ता है उनको रिसाइकलिंग के लिए थ्रू वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसीज। ये उनका मैंडेट है। मतलब गवर्नमेंट ने उनको बोला है कि भाई जितना भी प्लास्टिक आप मार्केट के अंदर छोड़ते हो वो आपको कलेक्ट करना है, एंड दैट यू हैव टू गिव इट फॉर रिसाइकलिंग। ठीक है, नाउ द ब्रांड्स डोंट डू इट देमसेल्व्स, दे हायर सम एजेंसी और वो प्लास्टिक कलेक्ट करके वो भेजते हैं। फिर ब्रांड्स और भी क्या करते थे, वर्क विद एनजीओज, गवर्नमेंट बॉडीज टू क्रिएट मास अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स। मतलब ब्रांड्स अवेयरनेस के लिए भी काफी सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि कंज्यूमर्स जो है वो मतलब whatever they consume it and dispose the plastic in a responsible manner। तो उसके ऊपर भी काफी सारा इन्वेस्टमेंट ब्रांड्स करते हैं। फिर ब्रांड्स ये भी करते हैं कि they help financially in creating the necessary infrastructure to channelize plastic waste. Now they also invest in trash depots बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में उसको। ट्रैश डेपोज बेसिकली क्या होता है कि कचरा जहाँ पे आता है वहां से सारा कचरा अलग अलग हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ट्रांसफर स्टेशन होता है जहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी जाती है और वहां पे रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल, ये सारा सॉरी रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल सारा अलग होता है वहां पे। तो ट्रैश डेपो बोल लो या फिर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी भी बोल लो, MRF, तो ये भी उसी टाइप का होता है। तो बहुत सारे ब्रांड्स उन MRF में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, और उसको प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए दे प्रोवाइड टेक्नोलॉजीज, दे प्रोवाइड फंडिंग। दैट इज व्हाट आल्सो ब्रांड्स डू।
फिर ब्रांड्स क्या करते हैं, उनको क्लीन अप प्रोजेक्ट्स और क्लीन अप प्रोजेक्ट्स भी फंड करते हैं, जैसे कि किसी कंपनी को इफ दे वांट टू डू अ क्लीन अप प्रोजेक्ट, तो दैट आल्सो ब्रांड्स आर देयर टू डू इट, तो वो भी वो फंड करते हैं। एंड ऑल्सो इनफॉर्मल सेक्टर के लिए पैसा देना, उनके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी, जैसे डिजिटल पेमेंट्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारे जो अवेयरनेस कैंपेन्स हो गए, ये सारा जितना भी जो काम होता है वो ब्रांड्स कर रहे हैं अपने लेवल पे। बट या इट शुड बी मोर, and brand should be more responsible in, brand should be more responsible with their packaging. That is also my personal opinion. गवर्नमेंट क्या कर रहा है, चलो कंज्यूमर आपने सोच लिया कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, ब्रांड क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो बेसिकली trying to bring the schemes and the laws which are which will be solving these problems. तो बेसिकली सबसे हमारा मेजर आज का जो है वो है स्वच्छ भारत मिशन। तो उसके अंदर ऑलरेडी 1.4 लाख करोड़ पैसा दे दिया है इस साल के लिए, ठीक है, उतना अलॉट हो चुका है। तो ये करता क्या है, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो स्टेट्स को और उनको पैसे देता है, लाइक स्टेट्स को एंड सिटीज को, जहाँ पे द मनी इज यूज्ड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट एंड टू इम्प्रूव द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स इन द सिटी। फिर दूसरा है स्टार्टअप इंडिया, जहाँ पे वैसे एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट मिलता है जो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर आइडियाज के ऊपर काम कर रहे हैं। इफ द आइडिया इज वर्केबल इनफ, द आइडिया इज स्केलेबल इनफ, देन दे गिव अराउंड 15 लाख पर आइडिया। उतना फंड गवर्नमेंट करती है थ्रू स्टार्टअप इंडिया का जो फंड है उनका, गवर्नमेंट का। दूसरा है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि ब्रांड का एक काम रहता है कि जितने भी प्लास्टिक का वो सिस्टम के अंदर डालता है वो उनको कलेक्ट करने का लॉ है। सो एक सिंपल मैं आपको बता दूं कि कोको कोला है, कोको कोला सबसे बड़ा प्लास्टिक पोल्यूटर है अब पूरे वर्ल्ड के अंदर। इवन इन इंडिया इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर। कोको कोला का सबसे मेजर जो प्लास्टिक वेस्ट निकलता है वो बॉटल्स में निकलता है, जो पेट बॉटल्स हम बोलते हैं, छोटी वाली बॉटल आती है उसकी प्लास्टिक की, फिर बड़ी वाली आती है, फिर और 2 लीटर की आती है, 2.5 लीटर की आती है, बहुत बड़ी बड़ी बॉटल्स आती है उसकी। तो ये सारा जो वेस्ट है, तो ये सारा वेस्ट कोको कोला को दे आर गिवन अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ वेस्ट, कि जैसे बॉटल है तो बॉटल कम्स अंडर द पेट कैटेगरी, पॉलीथिलीन टेट्राफ्लेट होता है वो जो रेजिन होता है उसके पीछे प्लास्टिक का। सो व्हाट कोक हैज टू डू इज कोक हैज टू रिवील द क्वांटिटी टू द गवर्नमेंट कि हमने इतना पेट बॉटल्स बेचा है मार्केट के अंदर। सो जितना पेट बॉटल्स बेचा है, व्हाट कोक हैज टू डू इज कोक हैज टू पे फॉर द मनी एंड दे हैव टू चैनलाइज दैट अमाउंट ऑफ पेट फॉर रिसाइकलिंग। सो दैट इज व्हाट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। तो मैं आपको जो समझाया दैट इज अ वेरी 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 सिंपल टर्म्स में समझाया कि जितना प्लास्टिक एक कंपनी मार्केट के अंदर छोड़ती है उतना ही प्लास्टिक उस कंपनी को सेम टाइप का मार्केट से निकाल के रिसाइकलिंग में डालना है। ये है ईपीआर, एकदम सिंपल टर्म्स में। तो ये होता है सेल्फ फंडेड ब्रांड ओनर्स के, इसके लिए गवर्नमेंट कोई फंड नहीं करती, द ब्रांड हैज टू डू इट देमसेल्व्स। सो ये हो गया हमारा ईपीआर। नाउ just coming towards the end, now I'll just conclude this by saying that plastic waste जो है, जो problem है, if you look at it as ये plastic waste ये करता है, plastic waste वो करता है, तो ऐसा नहीं है। it's a multifaceted problem जिसके पीछे बहुत सारे लोगों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों के livelihoods जुड़े हुए हैं। especially if you are from the social work background, आपको पता है रैक पिकर communities कैसे रहती है, तो ये आपके लिए एक स्टडी टॉपिक भी हो सकता है। सो दैट इज समथिंग दैट इज ऑलवेज देयर। सो प्लास्टिक वेस्ट एक मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम है, उसका कोई एक सिंगल सोल्यूशन नहीं है कि आप ये सोल्यूशन निकालोगे तो पूरे इंडिया का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं। क्योंकि लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, वर्ल्ड की सबसे डेवलप्ड कंट्री भी जो है, कोई भी कंट्री आप ले लो जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, वो भी आज तक प्लास्टिक का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई है। सो इट्स अ मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम। नाउ हर एक स्टेक होल्डर है इस फील्ड के अंदर, इस इकोसिस्टम के अंदर, वो धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया था कि कनेक्टेड ही नहीं है। मतलब रैक पिकर को नहीं पता एग्रीगेटर क्या कर रहा है, एग्रीगेटर सिर्फ रिसाइकलर से बात करता है और स्क्रैप डीलर से बात करता है। सो ये बहुत जो डिस्कनेक्ट है वो धीरे धीरे वो कनेक्ट होने लग गए बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली।
तो टेक्नोलॉजी की वजह से काफी सारे कनेक्शंस बनने लग गए हैं। उसके बाद एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाना एक नीड ऑफ द आवर है। ऑल्दो द करंट बिजनेस मॉडल इज टेम्पररीली सस्टेनेबल, बट एक बहुत ही रोबस्ट मॉडल, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, जैसे किसी भी प्रोडक्ट में आप देखते हो कि जैसे फूड प्रोडक्ट्स हो गए या फिर दूसरे FMCG प्रोडक्ट्स हो गए, तो उनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत सस्टेनेबल है कि उनको पता है रॉ मटेरियल आ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, मार्केट में बिक भी जाएगा। लेकिन वैसा वेस्ट के लिए नहीं है, द मॉडल इज स्टिल नॉट वेरी सस्टेनेबल। तो ये एक बिजनेस मॉडल बनाना एक वे फॉरवर्ड, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है वो ये बोल रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट को एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा। इट कैनॉट ऑलवेज बी एन इट कैनॉट ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम for the world. It has to be solved by business decisions. Then consumers एक बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं अपने डिस्पोजल हैबिट्स में, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल्सो, बिकॉज आप जो कंज्यूम करते हो और आप जो डिस्पोज करते हो उसका कॉन्सिक्वेंसेज होता है, ठीक है। सो ऑलवेज इंश्योर कि आप जितना भी कंज्यूम कर रहे हो वो रिस्पॉन्सिबल है, और डिस्पोजल उससे भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आप कहीं पे भी फेंको नहीं, उसको सेग्रीगेट करो। दैट इज समथिंग दैट इज द चेंज दैट यू कैन स्टार्ट विथ। ये एक बेसिक चेंज है जो अपनी लाइफ में आप ला सकते हो। फिर गवर्नमेंट है, ब्रांड्स है और दूसरे स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज, वो काफी सारी नई नई टेक्नोलॉजीज दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद इट। कि जैसे एक सिस्टम है जिसका नाम है DRS सिस्टम, डिपॉजिट रिटर्न स्कीम। आपने शायद देखा होगा कि ये कुछ हम लोग पेट बॉटल अगर किसी मशीन के अंदर डालते हैं तो एक इंसेंटिव मिलता है या कैशबैक मिलता है, देयर इज समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी जो स्कीम्स है वो ऐसे लगता है हमको कि वो काम नहीं करेंगी, बट द गवर्नमेंट इज एक्चुअली वर्किंग ऑन इट कि इसको कैसे एक बिजनेस मॉडल बनाया जाए, कहीं कैसे नई टेक्नोलॉजी से रिसाइकलिंग 100% हो पाए, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू डू 100% ऑफ पेट बॉटल रिसाइकलिंग बाय 2024। वो उनको करना है, एंड ऑफ 2024 तक उनको पूरा 100% पेट बॉटल्स रिसाइकल करने हैं। अभी कुछ 70-80% है। तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है। फिर स्टार्टअप्स है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, वो भी नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं टू सॉल्व द चैलेंज। सो ये सारी चीजें एक वे फॉरवर्ड है जो हम जितनी भी स्टेक होल्डर्स है, जितने भी सिटीजन्स है, जो भी अपनी अपनी फील्ड के हिसाब से, अपनी अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर पाए, नॉट जस्ट फील्ड एंड एक्सपर्टीज बट ऑल्सो एज अ कंज्यूमर, अगर आप कर सकते हो तो देन ऑल्सो इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग टू डू. So that with this I would like to conclude this presentation, and for the next 15-20 minutes or let's say half an hour also I'm fine with it. I'll be taking the questions and I'll just shoot the questions whatever you have. Don't hold yourself back, and please ask whatever you want to ask about this field, about anything, about कुछ भी आपको पूछना है please पूछो. Thank you so much. Students, you are requested to ask any question which you have, and further if you have any question, concern regarding the same topic, you can ask Abhishek right now. Yeah, please ask. आपको कोई भी question है आप पूछिए, and I'll be very very happy to answer it. I'm at least expecting 5-6 questions. It should be good enough. कोई भी question, even if it is if you think yourself कि silly question है, देखो कोई भी question silly नहीं होता. तो अगर आपको अंदर से लग रहा है कि silly है तो please don't think like that. आप कुछ भी पूछ सकते हो. Abhishek, जी. On behalf of Georgie, there is a student, Georgie, and she has asked one question that is very beautiful. She has portrayed. On behalf of Georgie, she has stated there are many ideas that government need to recycle the waste, but how we can use and how we can reach to the person who is doing all these activities, which can help us in order to release this waste or garbage. As in, I mean, can you repeat the question? I'm just trying to grasp it. So there are so many ideas that government needs to recycle the waste, but how we can reach to that person, and what are these government strategies and ideas
so that we get a clear idea what are the strategies and ideas they are opting in order to release this garbage. Okay. So is there So yes. Yeah. So basically, let me just put this thing into perspective. See, recycling जो है, sorry, recycling is altogether different business. तो ये वाला जो है recycling में जो मटेरियल जाता है वो ऑलरेडी चैनलाइज्ड मटेरियल है. हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, द वे आई सी इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज दैट यू सी. हर जगह पे कचरा पड़ा हुआ है, कचरा कहीं किसी यू नो इसके एनिमल खा रहे हैं वो कचरा, या फिर पानी के अंदर जा रहा है. दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज. एंड यस, प्लास्टिक उसके अंदर ऑब्वियसली इन्वॉल्व है. बट या व्हेन यू टॉक अबाउट अ पर्सन कि किसके पास हम जाए अपना आइडिया लेके, इफ दैट इज द क्वेश्चन यू आर आस्किंग, देन there is no specific person that you can go to. But yes, what you can do is you can have a plan of what you want to do. And then there are, certain departments in the government. For example, you can start with the municipal corporation. For example, you can, हमारे बड़ौदा के अंदर जो municipal corporation है उसका एक solid waste management का cell है. It is exactly opposite. If you are from Baroda, you can find it opposite Khanderao market. तो वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक पूरा सेल है. तो आपके पास अगर कोई आइडिया है तो वो जो सेल का जो डायरेक्टर है, you can go and discuss with them. That is one thing. But I am not sure whether they already have their own priorities. So I am not sure whether they would listen to it or not. But yes, there are platforms there are forums, there are meetings also जहाँ पे तुम ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो अगर आपके पास कोई आइडिया है तो. Sir, I have question. Like we are talking about waste free और मतलब recycling, but in Gujarat जो जेतपुर की इंडस्ट्रीज है टेक्सटाइल और एनीथिंग, तो उनका जो वेस्ट है और उनका जो गंदा पानी निकलता है वो उन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो पोरबंदर का जो दरिया है उनमें डालेंगे. तो इसका क्या मतलब कि मतलब ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है और इनके लिए बहुत सारे लोगों ने वहां जाके आवेदन पत्र भी कलेक्टर को दिया है कि इनकी मतलब इस वजह से जो सी लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब होगी और देयर आर सो मेनी डिसएडवांटेज भी है. बट मतलब एक हम क्लीन करने के लिए अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अगर दूसरी जगह पे प्रॉब्लम होता है और फिर वही वेस्ट कहीं और जाके गिरता है तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है सर? सो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा. इसका ना ये ट्रांसफर ऑफ वेस्ट बोलते हैं बेसिकली कि आप अपने इसको निम्बी सिंड्रोम जो मैंने प्रेजेंटेशन में बोला था कि मुझे अपने बैकयार्ड में नहीं चाहिए. सो टेक्सटाइल कंपनीज वही कर रही है. वो क्या कर रहे हैं कि वो अपना जो गंदा पानी है वो निकाल के समुद्र में डाल देंगे, तो हमको हमारे पास नहीं चाहिए ये पानी. जबकि लॉ ये बोलता है वहां पे कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन जेतपुर नहीं, इन जनरल जितनी भी इंडस्ट्रीज है दे शुड हैव दैट जीरो डिस्चार्ज सिस्टम. तो कोई भी पानी जो निकलता है इंडस्ट्री में से, इट शुड नॉट गो आउट विदाउट टर्शियरी लेवल ऑफ फिल्टरिंग. लेकिन वो फॉलो नहीं होता. दैट ऑल्सो आई नो. उसका सोल्यूशन बेसिकली है ना पॉलिसी एंड लॉ ही है. जितना ज्यादा विजिलेंट होगा अपना गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये उनके हाथ में जनरली रहता है. तो लोगों ने अगर प्रोटेक्ट यस सर, बट मेरे जो ये आवेदन पत्र सब लोगों ने मिलके दिया था कि भाई ये नहीं होना चाहिए ये वो, लेकिन गवर्नमेंट आर स्ट्रिक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन जब जिन लोगों ने दिया उनको भी पुलिस में अरेस्ट इन द सेंस कि उनको भी पुलिस को आंसर देने जाना पड़ा कि व्हाई यू आर डूइंग दिस. मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रूल्स आर देयर, बट मतलब वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होता है. तो इसका क्या मतलब रह जाएंगे पॉलिसीज और लॉ के. मतलब हम एक बोलते हैं ना कि कोई भी हो लेकिन उनका सब जो होता है वो पॉलिटिकल पावर ही होता है. तो फिर अगर गवर्नमेंट लॉज भी बनाते हैं और गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं करते है सर. ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली कि इनका जो भी कंपनीज होती है या ब्रांड्स होती है, आप बोलो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपके केस में, उनका पॉलिटिकल पावर रहता है. यस, पॉलिटिकल पावर रहता है. लेकिन ये पावर क्या होता है, कभी कभी बहुत लोकलाइज्ड होता है. मतलब आपको देखने मिलेगा शायद जेतपुर में ये चीज है, लेकिन आप इस पॉलिटिकल पावर को आप इसको ये नहीं कर सकते कि ये सेम चीज दूसरी भी जगह पे होती है.
सो दूसरी जगह पे कभी कभी ये भी होता है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, तो दे डोंट अलाउ एनीथिंग। तो ये जो जेतपुर का है, ये व्हाट आई फील इज मोर ऑफ अ लोकलाइज्ड प्रॉब्लम, कि वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज है, दे हैव अ वेरी उन्होंने गवर्नमेंट के साथ, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उनके साथ उन्होंने काफी ज्यादा ये करके रखा है, मतलब सेटिंग बोल सकते हो आप उसको, कि ये उनको जो लोग उनके अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे तो गवर्नमेंट लोगों के अगेंस्ट जाएगी रादर देन गोइंग अगेंस्ट द कंपनी। तो ये एक लोकलाइज्ड इशू है वहाँ पे। सो दैट इज द वे आई सी इट। एंड दूसरा उसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी लोग जब भी कंप्लेन करते हैं तो पुलिस ने उनको इसलिए भी बुलाया क्योंकि समटाइम्स ऑल्सो इट इज ऑल्सो पॉलिटिकल, कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये भी कभी कभी होता है कि एक्चुअली में, जैसे मान लो अभी इस केस में तो आप बोल रहे हो कि वो पॉल्यूट कर रहा है, तो कर ही रहा होगा, बट कभी कभी क्या होता है कि इंडस्ट्रीज कभी कभी पॉल्यूट नहीं करती, फिर भी बहुत सारे लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। तो ये क्या है, ये बैलेंस बनाना पड़ता है कभी कभी। दैट इज व्हाई पीपल आर आल्सो समटाइम्स क्वेश्चन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज लाइक इंडस्ट्रीज के पास ज्यादा पावर होता है। तो इसका करना क्या है, करना तो देखो गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ही करना पड़ेगा और लोगों को करना पड़ेगा। दे विल हैव टू टेक इट टू द स्ट्रीट्स इफ द थिंग्स डोंट वर्क आउट। तो प्रोटेस्ट एक मेजर थिंग है जो लोग कर सकते हैं, एंड इसका जो एक्शन लेने का जो थिंग जो है वो गवर्नमेंट, मतलब जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो उनको ही करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ द बैलेंस विल बी क्रिएटेड, बट दिस इज द ओनली वे आउट। Okay, sir. Thank you so much. Any more questions? अभिषेक, एक और Yeah. हाँ, एक और सवाल आया है। मौसम बिलोंग्स टू बीएसडब्ल्यू थर्ड सेमेस्टर। उसने ये पूछा है अभिषेक कि यूजुअली क्या है कि हम जब भी कोई भी गार्बेज होता है या कोई भी प्लास्टिक होता है, कोई भी तो हम लोग उसे बहुत इजीली जमीन पर फेंक देते हैं। एंड हम ये बोलते हैं कभी कभी, समटाइम्स वी हैव दैट माइंडसेट एंड थॉट प्रोसेस, वी आर पेइंग 2% ऑफ द टैक्स, ठीक है? So it is the duty of a government to collect this garbage. Nadeem, So your how voice, I can can't hear mitigate- your voice clearly. Okay, just give me a I minute. can't hear. Yeah, I can't hear your voice clearly. Yes, Abhishek, is it audible? Make it over. Yeah, it is audible, but थोड़ा कट रहा है भी। Yes, yes. No, I So think- Abhishek, this is again last question I want to ask. Usually what we do, हम कोई भी गार्बेज होता है वो बहुत इजीली फेंक देते हैं और क्या बोलते हैं कि we are paying 2% of tax. So it is the duty of government to collect the garbage. So now how we can mitigate and combat with this sort of mentality? किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? देखो गार्बेज रास्ते पे फेंकना, मतलब ये गार्बेज रास्ते पे फेंकना पहले तो बहुत ही ज्यादा गलत है। मतलब see, it is not the responsibility of the government to collect garbage from the road. It is the government, it is government's responsibility to collect garbage from the dustbins. तो आप कभी भी ये मत सोचना कि आप रास्ते पे कचरा फेंक दोगे और वो गवर्नमेंट का काम है उसको उठाना।